السلام علیکم۔ کراچی سے خیبر تک کے سفرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ۔ سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ مار نہیں پیار، صرف نعرہ ثابت۔ اسکولوں میں تشدد کی روایت برقرار، گجرانوالہ میں سبق یاد نہ کرنے پر سرکاری اسکول کی ٹیچر کا ننھے طالب علم پر وحشیانہ تشدد، اہل خانہ سراپا احتجاج۔ پنڈی بھٹیاں تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال کی ایمبولنس ناکارہ، دیگر ایمبولنسز کے لیے فراہم کردہ فنڈز بھی غائب۔ حکومت کی عدم توجہ کے باعث ہسپتال کی حالت زار قابل رحم ہو گئی۔ توبہ ٹیک سنگھ میں سینکڑوں بھٹا مزدوروں کی احتجاجی ریلی، مظاہرین نے اجرتوں میں اضافہ اور بچوں کو مراد دینے کا مطالبہ کر دیا۔ احمد پور، شرقیہ، حاصل پور اور مبارک پور سمیت ضلع بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، دورانیہ 12 گھنٹے سے بھی تجاوز کر گیا، کاروبار زندگی متاثر، شہری بے حال۔ ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم۔ دہاڑی میں ابرو صحافت، مجید نظامی مرحوم کی یاد میں تقریب کا انعقاد۔ شرکاء کا کہنا ہے کہ مجید نظامی مرحوم نے ملک اور قوم کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی۔ ناروال میں ہفتہ فیملی پلاننگ کے تحت صحت مند بچوں کا مقابلہ، پوزیشن ہولڈرز بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ املی آلو بخارے کا شربت عوام کا من پسند، گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ شیخو پورہ میں املی آلو بخارے کے سٹالز پر مسافروں اور راہگیروں کا رش۔ خیرپور میں کار میں اچانک آگ لگنے سے 3 بچے جھلس کر جاں بحق، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ سکھر میں ایک ہی خاندان کے 5 بچوں میں پولیو کا انکشاف، والدین کہتے ہیں کہ ویکسین پلانے کے باوجود ٹانگیں کام نہیں کر رہی۔ بدین میں بدترین لوڈ شیڈنگ، ستائے عوام نے ہیسکو آفس کے سامنے دھرنا دے دیا، مشتعل مظاہرین کی دفتر میں داخلے کی کوشش، جس کے بعد عملہ فرار ہو گیا۔ لیکن میری تعلیم کیسے مکمل ہوگی بابا، اگر آج ہمارے پاس کچھ پیسے ہوتے تو میں شہر جا کر اپنی تعلیم مکمل کر لیتا بابا۔ گھوٹکی اور میرپور ماتھیلوں میں اسٹیج اداکار مزدور بن گئے، ایکو ساؤنڈ اور لائٹنگ سے وابستہ افراد بھی معاشی تنگدستی کا شکار، سینکڑوں گھرانے حکومتی بے حسی کے باعث فاقوں پر مجبور۔ مردان کے تاجروں نے شٹ ڈاؤن کر کے مالاکنڈ چوک پر پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، مظاہرین کا گرفتار ساتھیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ پیراگلائیڈنگ مہنگا شوق ہونے کے باوجود چترال میں تیزی سے مقبول ہونے لگا، مقامی پیراگلائیڈرز اپنی مدد آپ کے تحت فن دوسروں کو منتقل کرنے میں مصروف۔ اور بلوچستان کے علاقے قاران میں مسلح افراد کی فائرنگ، 4 مزدور زندگی کی بازی ہار گئے، مقتولین کا تعلق سندھ کے شہر گھوٹکی سے تھا۔ ہیڈ لائنز اب جان چکے ہیں، بلیٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے سندھ دھرتی کی۔
سب سے پہلے خبر دیں گے آپ کو خیرپور سے۔ خیرپور گاڑی پل کے قریب گھر میں کھڑی کار میں اچانک آگ لگنے سے 3 بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ خیرپور گاڑی پل کے قریب گھر میں کھڑی کار میں بچے کھیل رہے تھے کہ اچانک اس میں آگ لگ گئی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری کار کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ اس قدر تیزی سے پھیلی کہ اس میں موجود بچوں کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہ ملا اور تینوں گاڑی کے اندر ہی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے بچوں کی عمریں 6 سے 13 سال کے درمیان ہے، جبکہ گاڑی میں آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جاتی ہے۔ اور ابھی خبر دیں گے آپ کو سکھر سے، جہاں تعلقہ میں ایک ہی خاندان کے 5 بچوں میں پولیو وائرس کا انکشاف ہوا ہے۔ ان بچوں کے والدین کہتے ہیں کہ ویکسین پلانے کے باوجود بھی بچوں کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں۔ سکھر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، جہاں پر پولیو کے کیسز سامنے آئے ہیں اور تعلقہ میں ایک ہی خاندان کے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 5 بچوں میں پولیو وائرس کا انکشاف ہوا ہے، اور والدین کہتے ہیں کہ ویکسین پلوائی ہے ان بچوں کو، لیکن ویکسین پلانے کے باوجود بھی ان 5 بچوں کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی۔ مبین خان وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں۔ مبین، ویکسین بھی پلائی ان بچوں کو لیکن بچوں کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، 1 نہیں 2 نہیں پورے 5 بچے ہیں۔ جی بالکل، یہ سکھر کے تعلقہ ضلع سالے پٹ کے گاؤں ٹھکراٹوں کے رہائشی علی حسن ماتم، جن کے 4 بچے جو ہیں وہ اس وقت جو ہے قسم و پوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پچھلے ماہ ان کے بچوں میں جو ہے وہ پولیو وائرس کا انکشاف ہوا، جس پر وہ علاج کرانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اس کے والد کا کہنا ہے کہ پولیو ویکسین ہم نے بارہا پلائی، لیکن اس کے بعد 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 بچوں میں جو ہے وہ پولیو وائرس کے جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے، مبینہ طور پر حملہ ہوا ہے۔ اس میں جو 4 بچوں کی جو ٹانگیں ہیں وہ بری طرح مفلوج ہو گئی ہیں، اور یہ بچے تقریباً جو ہے 7 سال سے لے کے 5 سال 3 سال اور 2 سال تک کے ہیں، اور اس کا جو والد ہے علی حسن ماتم جو ہے وہ مزدور آدمی ہے جو سر تغاری کا کام کرتا ہے، اور اس وقت تک جو ہے وہ کوئی بھی اہلکار یا میڈیکل کی ٹیم ہے اس کی داد رسی کے لیے نہیں پہنچ رہی ہیں۔ جی شکریہ مبین اپڈیٹس کے لیے۔ 4 بچوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، اور والدین کا یہ موقف ہے کہ بچوں کو ویکسین پلائی گئی ہے، لیکن ویکسین پلانے کے باوجود بھی ان بچوں میں پولیو وائرس پایا جا رہا ہے۔ اور ابھی خبر دیں گے آپ کو ٹھٹا سے۔ ٹھٹا میں مرغی کے گوشت کی قیمت میں زبردست اضافہ ہو چکا ہے، فی کلو قیمت 400 روپے سے بھی تجاوز کر چکی ہے، جس کے باعث مرغی کا گوشت متوسط اور غریب طبقے کی قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے۔ ٹھٹا سمیت اندرون سندھ میں مرغی کا گوشت مہنگے داموں فروخت ہو رہا ہے۔ مختلف علاقوں میں فی کلو نرخ 400 روپے سے بھی تجاوز کر گئے۔ نرخوں میں اضافے کے باعث مرغی کا گوشت غریب اور متوسط طبقے کی قوت خرید سے باہر ہو گیا۔ مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں اچانک اضافے پر صارفین سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ اور متعلقہ ادارے اس مصنوعی گراں فروشی پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں غریب عوام کیا کریں؟ مرغی کا گوشت مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کی طلب کم ہو گئی ہے، جس پر دکاندار حضرات بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گاہک نہیں آتے، سارا دن فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ ایسے حالات میں گزر بسر بہت مشکل ہو گیا ہے۔ عوام الناس نے مطالبہ کیا ہے کہ مرغی کے گوشت کی قیمتوں میں مصنوعی اضافے کا نوٹس لیا جائے اور گراں فروشی کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ بصورت دیگر احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ابھی خبر دیں گے آپ کو بدین سے، جہاں بدترین لوڈ شیڈنگ سے ستائے عوام نے ہیسکو آفس کے سامنے دھرنا دے دیا ہے۔ مسلم مظاہرین نے دفتر میں داخلے کی کوشش کی ہے، جس کے بعد عملہ فرار ہو گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، وقت نیوز کے نمائندہ دانش الیاس ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دانش، بدین میں بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، عوام سراپا احتجاج ہیں، تفصیلات دیجیے۔ ہاں جی بالکل، بدین تو جیسے پاکستان میں آتا ہی نہیں ہے۔ حکومت کی جانب سے دعوے تو بڑے بڑے کیے گئے تھے کہ اپنا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا جائے گا، لیکن بدین میں آپ کو بتاؤں کہ مسلسل بجلی کا ایک بحران آیا ہوا ہے۔ بدین میں بجلی کا جو غیر علنی لوڈ شیڈنگ ہے، 18 سے 20 گھنٹے کی غیر علنی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عام زندگی کے ساتھ ساتھ کاروباری زندگی بھی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ میں آپ کو یہی بتاتے چلوں کہ بدین کا ایک مین شہباز روڈ ہے، جہاں پر تقریباً 3 روز قبل ایک ٹرانسفارمر خراب ہو گیا تھا، جس کو شہری شکایت پر اپنا وابڈا کا عملہ اس ٹرانسفارمر کو نکال کے تو لے گیا تھا، لیکن 3 دن گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک وہ ٹرانسفارمر لگا بدین کے شہری سراپا احتجاج ہیں اور ہیسکو آفس کا گھیراؤ بھی کیا گیا ہے۔ شکریہ آپ کا دانش۔ اور ابھی خبر ہے گھوٹکی سے۔ گھوٹکی میں چند روز قبل قتل ہونے والے نوجوان کے ورثاء نے قاتلوں کی عدم گرفتاری کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور دھرنا دے دیا ہے۔ مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا گیا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کئی افراد کو
गिरफ्तार कर लिया गया है। घोटकी से खबर है जहां पर चंद रोज कबल कत्ल होने वाले नौजवान के वारिसा ने कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया है। और इसी पर बात करने के लिए लियाकत अवान वक्त न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, कत्ल किया गया था नौजवान का, लेकिन कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, लवाहिकीन सरापा एहतजाज हैं, पुलिस का क्या कहना है? जी बिल्कुल, पुलिस जो है वो इंसाफ देने में जो है बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। कातिल जो है उनकी अदम गिरफ्तारी के लिए गुरसा ने एसएसपी ऑफिस के सामने एहतजाज किया तो पुलिस जो है उन्हीं पर लाठियां बरसाना शुरू हो गई और उन्हीं पर बेमाना तशद्दुद किया। ये तशद्दुद करने वाले पुलिस मीरपुर माथेलो पुलिस के एहलकार थे जिन्होंने जो है खवातीन और बच्चों पर सख्त तशद्दुद किया और बुजुर्ग शहरी थे जिन पर डंडे बरसाए। इंसाफ के हसूल के लिए एहतजाज करना जो है उनको महंगा पड़ गया है और पुलिस की जानिब से उन पर लाठीचार्ज की गई है और कई अफराद को गिरफ्तार करके मीरपुर थाने पर मुंतकिल किया गया है। 5 रोज कबल जो है एक नौजवान को जो है कत्ल कर दिया गया था जिसकी एफआईआर जो है खानपुर महर पुलिस थाना पर नहीं काटी गई, जिसके लिए वो अपने इंसाफ के हसूल के लिए जो है आज एहतजाज कर रहे थे तो पुलिस ने उनको शुक्रिया लियाकत अवान घोटकी से अपडेट कर रहे थे, जो है तशद्दुद का निशाना बनाया है। जी शुक्रिया लियाकत। नाज़रीन, घोटकी और मीरपुर माथेलो में स्टेज अदाकार मजदूर बन गए। एको साउंड और लाइटिंग से वाबस्ता अफराद भी मुआशी तंगदस्ती का शिकार हो गए हैं। सैकड़ों घराने हुकूमती बेहिसी के बायस फाकों पर मजबूर हैं। समाजी मसाइल उजागर और लोगों को सस्ती तफरीह फराहम करने का बेहतरीन जरिया स्टेज ड्रामा है, मगर मीरपुर माथेलो का क्लब वीरान होने से स्टेज अदाकार मजदूरी पर मजबूर हो गए। 20 बरस तक घोटकी के स्टेज ड्रामों पर राज करने वाले मारूफ अदाकार गुलाम नबी कलोड़ो ने क्लब के बाहर ही चाय बेचना शुरू कर दी। स्टेज ड्रामा अभी खत्म हो गए हैं स्टेज ड्रामे, लेकिन अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में न तो उनके लिए कोई बजट रखी गई है, न ही उन स्टेज ड्रामों को आगे लेकर जाने के लिए कोई प्रोग्राम रखा है। स्टेज ड्रामे बंद होने से इको साउंड और लाइटिंग के कारोबार से वाबस्ता अफराद भी फाकों पर मजबूर हो गए हैं। साउंड सिस्टम फरोख्त करने वाले दुकानदार अयाज सुमरो ने कहा कि अगर हुकूमत ताउन करे तो क्लब बहाल हो सकता है और उनके मुआशी हालात भी बेहतर हो सकते हैं। वीरान क्लब में पड़ी खाली कुर्सियां आज भी शायकीन की मुंतजर दिखाई देती हैं। स्टेज ड्रामों के जरिए न सिर्फ मुकामी सकाफत को उजागर किया जाता था बल्कि हल्के फुल्के तंजिया अंदाज में माशरती बिगाड़ की निशानदेही भी की जाती थी। लेकिन मेरी तालीम कैसे मुकम्मल होगी बाबा, अगर आज हमारे पास कुछ पैसे होते तो मैं शहर जाकर अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता बाबा। स्टेज ड्रामा बंद होने से बदहाल और फाका मस्त अदाकारों ने हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त की है। उनका कहना है कि अरबाब इख्तियार की जरा सी तवज्जो से बहुत से घरों के चूल्हे दोबारा गर्म हो जाएंगे। नाज़रीन, खैरपुर में सरकारी स्कूल के तलबा तालिबात में इनामात तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस से हाजरीन के दिल जीत लिए। मेहमान खुसूसी ने बच्चों को दिल लगाकर हुसूल तालीम की तलकीन की। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोड़ो गोट खैरपुर में मुनक्किदा सालाना अवार्ड तकरीब तकसीम इनामात हुए और तलबा तालिबात ने कौमी और सकाफती गीतों पर टैबलोस पेश किए। बच्चों ने प्यार और मोहब्बत के साथ बेहतर तालीमी निज़ाम और वतन अजीज के लिए कुछ कर गुजरने का पैगाम दिया। नाज़रीन, हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह से ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो चुका है। तहम इंसानी सेहत के लिए मुफीद होने की वजह से ठंडी लस्सी बकसरत इस्तेमाल की जाती है। मौसम गर्मा में लस्सी बनाने की दुकानों पर खरीदारों का खासा रश लगा रहता है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ठंडी ठार लस्सी गर्मी को भगाते हुए इंसानी जिस्म को फरहत बख्शती है, जिसकी वजह से गर्मियों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। यही वजह है कि हैदराबाद के वासी मौसम गर्मा के आगाज पर ही ज्यादातर लस्सी पीने को तरजीह देते हैं। निशात चौक परवाह के लस्सी की दुकानों पर गर्मियों में शहरियों का रश रहना मामूल की बात है। शहरियों का ये कहना है कि शदीद गर्मी में दीगर मशरूबात की निस्बत वो लस्सी को ज्यादा तरजीह देते हैं, क्योंकि लस्सी इंसानी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। लेकिन यहाँ की लस्सी की बात अलग है, इसलिए हम अक्सर यहाँ पे दोस्तों के साथ भी आते हैं और घर वालों के लिए भी पार्सल करवा के लेके जाते हैं। लस्सी जो है बीमारियों से महफूज रखती है और गर्मी से भी महफूज रहती है। मैं समझता हूँ हमारे हैदराबाद में सबसे बेस्ट लस्सी है वो यहीं की है। दुकानदारों का ये कहना है कि वो लस्सी को ज्यादा टेस्टी बनाने के लिए उसमें रबड़ी, बालाई समेत खुश्क मेवाजात का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको पीने के बाद गर्मी से निढाल लोगों में तवानाई बहाल हो जाती है।
और नजर गुजरांवाला में सबक याद ना करने पर सरकारी स्कूल की टीचर ने नन्हे तालिब इल्म को डंडों से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले खाना सरापा एहतजाज बन गए। अरफात कॉलोनी में कायम गवर्नमेंट एमसी प्राइमरी स्कूल की टीचर ने सबक याद ना करने पर 7 साला दानिश को डंडों से बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया। नन्हे तालिब इल्म के जिस्म पर नील पड़ गए। तालिब इल्म की हालत गैर होने पर टीचर मौका से फरार हो गई। तहम इत्तला मिलने पर तालिब इल्म के वालिदैन स्कूल पहुंचे और बच्चे को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ले जाया गया। बादशाह अहले खाना ने स्कूल के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया और आला हुक्काम से तालिब इल्म को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने वाली टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। नजर गुजरांवाला की बात खबर देंगे आपको मुल्तान से, जहां पर गैस्ट्रो की वबा बेकाबू हो चुकी है। एक ही दिन में शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 114 मरीज लाए गए हैं, जिनमें से 40 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्तान से खबर है जहां पर गैस्ट्रो की वबा बेकाबू हो चुकी है और एक ही दिन में शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में 114 मरीज लाए गए हैं, जिनमें से 40 मरीज ऐसे बताए जाते हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। एजाज तरीन वक्त न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। एजाज, एक ही रोज में 100 से ज्यादा पेशेंट अस्पताल लाए गए हैं, डॉक्टर्स क्या बताते हैं इस बीमारी की वजह? जी, 114 मरीज जो हैं गैस्ट्रो के वो सरकारी अस्पतालों में लग गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि ये मुद्रे सेहत एशिया जो खुलेआम फरोख्त हो रही है, इनकी खाने की वजह से लोग जो है गैस्ट्रो का शिकार हो रहे हैं। निस्तर अस्पताल, सिविल अस्पताल, सराय जितने सरकारी अस्पताल हैं, इनमें 24 घंटे के दौरान 114 मरीजों को लाया गया है, जिनमें 40 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि वो इस मौसम में जो है खाने पीने की एशिया जो खासतौर पर मुद्रे सेहत एशिया फरोख्त हो रही है, रेडियो पर मच्छियों के बीमार है, उनसे एहतियात करें और खाने पीने में जो है एहतियात करें और बिल्कुल लाइट फूड लें और पानी जो है वो ज्यादा लें, लिक्विड का इस्तेमाल ज्यादा करें। लेकिन एजाज, एकदम से 100 से ज्यादा पेशेंट अस्पताल में लाए गए, इसकी कोई खास वजह डॉक्टर्स के नजदीक? जी, डॉक्टर्स तो यही बताते हैं कि ये क्योंकि गर्मी है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ जो है वो मैदे और जो आंत है उसमें सूजन की वजह से ये बीमारी जो है वो ज्यादा मरीजों में फैल रही है। शुक्रिया एजाज तरीन, अपडेट कर रहे थे आप। पंजाब से आपको मजीद खबरें भी देंगे, लेकिन अभी अहम खबर है कराची से। सिंध काबीना के इजलास में आईजी सिंध को हटाए जाने का एजेंडा, आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध ने एडी ख्वाजा को तब्दील करने पर काबीना को एतमाद में लिया है। सिंध काबीना ने आईजी सिंध को हटाने की मंजूरी भी दे दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको कराची से, जहां पर सिंध काबीना के इजलास में आईजी सिंध को हटाए जाने का एजेंडा पेश किया गया है और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आईजी सिंध एडी ख्वाजा को तब्दील करने पर काबीना को एतमाद में लिया है और सिंध काबीना ने आईजी सिंध को हटाने की मंजूरी भी दे दी है। इससे पहले भी आईजी सिंध एडी ख्वाजा को जबरी रुखसत पर भेजा गया। आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और सिंध हाई कोर्ट ने अहकाम दिए कि आईजी सिंध एडी ख्वाजा अपनी जो आईनी मुद्दत है उसे पूरा करेंगे। और कुछ रोज पहले एक बार फिर से आईजी सिंध को हटाने का मामला सामने आया था, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि अगली समाअत तक एडी ख्वाजा को नहीं हटाया जाएगा। मंजर रिजवी वक्त न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। मंजर, पहले जबरी रुखसत पर भेजा गया, फिर वफाक को कहा गया कि एडी ख्वाजा हमें नहीं चाहिए, अब काबीना ने भी मंजूरी दे दी है, क्या तफसीलात है मजीद? जी, काबीना ने आपसे कुछ देर पहले जो ये इजलास, जो आज जो काबीना का इजलास रखा गया था, उसका अहम एजेंडा सबसे ज्यादा यही था कि एडी ख्वाजा के हवाले से जो है वो एजेंडा पेश किया जाए, जिसके बाद जो है वजीर आला सिंध ने तमाम काबीना को एतमाद में लिया और जो एजेंडा पेश हुआ काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो वजीर आला का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है और इसकी मंजूरी दे दी। अब कल यहाँ पे जो वकील हैं जो सिंध हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं वो हाई कोर्ट में ये पेश करेंगे और ये मामला हाई कोर्ट में दोबारा जाएगा कि ये अब तो आईजी सिंध एडी ख्वाजा को हटाने की काबीना ने भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद क्या रुख इख्तियार करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विफाक को अब भी पावर है कि वो अपना मर्जी का आईजी सिंध लगा सकती है। जी शुक्रिया आपका मंजर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी सियालकोट से खबर नहीं गई आपको, फेसबुक पर दोस्ती और फिर मोहब्बत की शादी के बाद शारून भट्टी का कत्ल या फिर खुदकुशी, केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। वक्त न्यूज ने डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है।
सियालकोट थाना बडियाना के इलाका से खेतों से 1 माह 10 दिन पहले गुजरांवाला के रिहायशी शेरून भट्टी की लाश मिली थी। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुकदमा दर्ज करके नायला की मां और बहन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि नायला जो कि बैरून मुल्क जा चुकी थी ने वतन वापसी पर अबूरी जमानत करवा ली। वक्त न्यूज ने शेरून भट्टी का डेथ सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है, जिसमें मौत को खुदकुशी करार दिया गया है। जराये के मुताबिक नायला और शेरून की शादी 2016 में घर वालों की रजामंदी से हुई थी। नायला के वकील का कहना है कि तमाम सबूत अदालत में पेश करेंगे और उन्हें इंसाफ मिलेगा। नायला केस जो है उसमें इंसाफ होगा और हमें अदालत से भी और अपना मीडिया से और दीगर जो एंड पुलिस वगैरह से जो अपना मैकेनिज्म है वो सारा इंशाल्लाह वो मतलब प्रोसेस में है। शेरून कत्ल केस में 5 अफराद पर मुकदमा दर्ज है, जिसमें से 3 मुल्जिमान अबूरी जमानत पर हैं, जबकि 2 मुल्जिमान जुडिशियल कर दिए गए हैं। भटिया से खबर देंगे आपको। तहसील हेडक्वार्टर्स पिंडी भटिया की वाहिद एम्बुलेंस भी नाकारा हो चुकी है। दीगर गाड़ियों के लिए फराहम करदा फंड्स भी गायब हो चुके हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस अस्पताल की हालत जार मजीद काबिल रहम हो गई है। पिंडी भटिया में आबादी के लिहाज से मुनासिब तादाद में एम्बुलेंसेज फराहम की जाना चाहिए, मगर शहर के नसीब में एक ही एम्बुलेंस आई है और वो भी खटारा हो चुकी है। हुकूमत और अस्पताल इंतजामिया की अदम तवज्जुही के बायस एम्बुलेंस की बरवक्त मरम्मत नहीं हो सकी, जिसकी वजह से वो सिर्फ ढांचा बन चुकी है। नाज़रीन, टोबा टेक्सिंग में सैकड़ों मजदूरों ने ख्वातीन और बच्चों के हमरा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि न सिर्फ उनकी उजरत में इजाफा किया जाए बल्कि बच्चों को भी मराद दी जाए। में सैकड़ों भट्टा मजदूर खवातीन बच्चों ने उजरतों में हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा न होने और सरकारी स्कूलों में मुराद न मिलने के खिलाफ डीसीओ कम्प्लेक्स से शहबाज चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत अवामी वर्कर पार्टी के जिले सदर मोहम्मद शबीर ने की। इस मौका पर मजदूरों ने हुकूमत और लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ शदीद नाराबाजी भी की। मजदूर रहनुमा मोहम्मद शबीर ने कहा कि भट्टा मालकान और लेबर डिपार्टमेंट की हरदर्मी के बायस आज भी मजदूर अपने हकूक से महरूम है। 9 महीने तो नोटिफिकेशन के मुताबिक उजरत नहीं मिल रही। दूसरा वज़ीर आला दे ऐलान के मुताबिक इन्होंने यूनिफॉर्म शूज बैग कोई चीज नहीं मिल रही। मुजाहिरीन का कहना था कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक एहतजाज जारी रखेंगे। नाज़रीन, जिला बहावलपुर की तमाम तहसीलों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। दौरानिया 12 घंटे से भी तजावुज कर चुका है। कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। शहरी सरापा एहतजाज बन गए। जिला बहावलपुर में गैर इलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने की वजह से शहरियों को सख्त परेशानी का सामना है। शहर में 10 से 12 घंटे और देही इलाकों में 12 से 14 घंटे तक की लोड शेडिंग जारी है। तहसील अहमदपुर, शर्किया, मुबारकपुर और हासिलपुर में तवील लोड शेडिंग के बायस कारोबारी जिंदगी मफरूश होकर रह गए हैं। अवाम का ये कहना था कि कारोबार ठप हो गए हैं। अस्पतालों में मरीज बेहाल हैं। गर्मी के आगाज में ही ये हाल है तो शदीद गर्मी में क्या बनेगा। बिजली का वादा करके अवाम से इन्होंने वोट लिया, अब अवाम परेशान है। घर में पानी नहीं है, लोग परेशान है। 3-3, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे ये वादा करते हैं जी लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, बिल्कुल कुछ भी नजर नहीं हमें आ रहा। उनका मजीद कहना था कि बिजली गायब हो तो पानी का मसला खुद ब खुद पैदा हो जाता है, इसलिए उन्हें दोहरा अजाब भुगतना पड़ता है। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि उनके हाल पर रहम किया जाए और उन्हें इस अजियत से निजात दिलाई जाए। नारोवाल में गोश्त, फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियां शिकायत के बावजूद कीमतें कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हैं। नारोवाल की प्राइस कंट्रोल कमेटियां अमलन रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गयी। दुकानदार मनमाने रेट वसूल कर रहे हैं। अशिया खुरनोश की कीमतें ज्यादा होने की वजह से अवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। मुर्गी 240 रुपए फी किलो, टमाटर 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही हैं, जबकि दीगर अशिया खुरनोश की कीमतें भी अचानक ही बढ़ गयी हैं। मार्केट कमेटी की जानिब से जारी करदा रेट लिस्टें दुकानों पर तो लटकती नजर आती हैं, लेकिन दुकानदार मुकर्रर करदा रेट से कहीं ज्यादा कीमतें वसूल करके अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। दुकानदारों का ये
कहना है कि उन्हें अशे फरोनोश मंडी से महंगे दामों मिलती हैं, इसीलिए वो जायद कीमतों पर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अवाम ने जिला इंतजामिया से प्राइस मजिस्ट्रेट को फाल करने और उनकी कड़ी निगरानी करने का मुतालिबा किया है। और वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार, साइंस और टेक्नोलॉजी राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि पैनमा केस का फैसला आना चाहिए। अवाम और दुनिया जानती है कि वज़ीर-ए-आज़म का उसमें नाम नहीं है। पैनमा को सियासी इशू बनाने के लिए नवाज शरीफ को उस मामले में अपोजिशन ने जानबूझकर मुलव्वस किया है। शेखुपुरा में तकरीब से खिताब करते हुए राना तनवीर ने कहा कि मुल्क व कौम की खिदमत मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर व मरकज है। हल्का की आवाम को गैस की फराहमी, स्कूल कॉलेजेस की तामीर और अपग्रेडेशन, नई सड़कें, पीने का साफ पानी और सेहत व तालीम की बेहतर सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवाम से किए वादों की पासदारी की है। मुस्लिम लीग नून अपनी कारकर्दगी और मुल्क व कौम की खिदमत की बुनियाद पर आइंदा आम इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। अब्दुल सहाफत डॉक्टर मजीद निजामी की याद में विहाड़ी में ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें ज़िला इंतजामिया के अफसरान और सहाफती बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुकर्रिरीन ने मरहूम की खिदमात को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं। ताज़ियती रेफरेंस से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि डॉक्टर मजीद निजामी और नवाए वक्त का किरदार सबसे जानदार और जुर्रतमंदाना था। डॉक्टर मजीद निजामी ने पाकिस्तान को नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के तहत तामीर तरक्की, इस्तेहकाम और दुश्मनों के सामने फौलादी कुव्वत बनाने में नुमाया किरदार अदा किया। वक्त न्यूज से बात करते हुए सहाफी रहनुमाओं का कहना था कि मजीद निजामी जिंदगी भर इल्म व अदब की तरवीज व तरक्की, इस्लामी तालीमात की फरोग, मुआशरे में ख्वातीन के आला मकाम और इलाकाई मसाइल उजागर करने के लिए कोशां रहे। मजीद निजामी एक ऐसा शख्सियत थे, उन्होंने सहाफत में एक नई सोच को फ़रोग दिया। उन्होंने सहाफत में एक पॉजिटिव अंदाज को आगे बढ़ाया। पाकिस्तान में एक बेहतरीन, पाक और इक़्तिदार वाली सहाफत को कायम करने में उनका बड़ा एक रोल है। उनकी खिदमत नज़रिया पाकिस्तान के सिलसिले में और अदबी हवालों से काबिल कदर हैं। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और ताज़ियती रेफरेंस के इख्तिताम पर केक भी काटा गया और मरहूम की बुलंद पाया खिदमत को खराज अकीदत पेश किया गया। मुकर्रिरीन का कहना था कि पूरी कौम को नजरिया पाकिस्तान पर सख्ती से कारबंद होना चाहिए। पंजाब से मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी एक टेस्ट क्रिकेट के हवाले से आपको बताएं कि दौरा वेस्ट इंडीज के लिए कौमी टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया है। मिसबाह कप्तान बरकरार रखे गए हैं, जबकि इस टीम में सरफराज अहमद, यूनुस खान, अजहर अली, मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद को भी शामिल किया गया है। ओपनिंग बल्लेबाज शान मसूद, बाबर आजम, असद शफीक, यासिर शाह और वहाब रियाज के साथ साथ हसन अली भी इस टीम में शामिल हैं। शादाब खान, उस्मान सलाहुद्दीन, मोहम्मद असगर और मोहम्मद अब्बास भी टेस्ट टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। सुल्तान शाह वक्त न्यूज के नुमाइंदा हमारे साथ हैं। सुल्तान, अब वनडे स्क्वाड का ऐलान किया गया, मिसबाह कप्तान बरकरार हैं, और कौन कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं? जी बिल्कुल सामने कौमी सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान की टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान की कौमी टेस्ट टीम को 3 टेस्ट मैचेस खेलने हैं। दौरा वेस्ट इंडीज पे तो टीम मौजूद है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल्लाह की जानिब से कोच मिकी ऑथर की कंसल्टेशन और कप्तान मिसबाह की कंसल्टेशन से टीम अनाउंस कर दी गई। मिसबाह कप्तान बरकरार रखे गए हैं। अहमद शहजाद, अजहर अली, शान मसूद, बाबर आजम, यूनुस खान, असद शफीक, सरफराज अहमद जो कि नाइब कप्तान और विकेट कीपर होंगे, जबकि उस्मान सलाहुद्दीन, यासिर शाह, शादाब खान, मोहम्मद असगर, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, असद अली और टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया गया। शुक्रिया सुल्तान तफसीलात के लिए। एक बार फिर से सूबा पंजाब की बात करेंगे। नारोवाल से खबर देंगे आपको। नारोवाल के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में खातून के हाथ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। डॉक्टर्स के मुताबिक चारों बच्चे सेहतमंद हैं। नारोवाल की तहसील पस्तूर के रहायशी मोहम्मद सलीम की अहलिया को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल नारोवाल लाया गया, जहां उसने 4 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 3 बेटियां जबकि 1 बेटा शामिल है। डॉक्टर्स के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 4 बच्चों की पैदाइश का यह पहला वाकया है। वालिदैन बच्चों की पैदाइश पर बेहद खुश हैं। उनका कहना था कि वो बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला ने शादी के पहले साल ही उनका घर खुशियों से भर दिया है।
अजीज़ व कारब ने अस्पताल में मिठाई तकसीम करके अपनी खुशी का इजहार किया। नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत पंजाब के ताउन से फलाही तंजीम की जानिब से जारी करदा खुद रोजगार स्कीम के तहत 227 बेरोजगार अफराद में 53 लाख रुपए के चेक तकसीम किए गए। मंडी बहाउद्दीन जामिया मस्जिद गौसिया में बेरोजगार अफराद में कर्ज हसना तकसीम करने की तकरीब हुई। चेयरमैन बलदिया, चेयरमैन बैतुल माल और फलाही इदारे के चेयरमैन समेत इलाके की अहम शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की। शुरका का कहना था कि हमारे मुल्क के लोग बावकार हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कर्जा लेकर इदारे को वापस ना किया हो। तकरीब के आखिर में चेयरमैन बलदिया और चेयरमैन बैतुल माल ने बेरोजगार अफराद को उनके पांव पर खड़ा करने के लिए फीकस 20 से 50 हजार रुपए कर्ज हसना के चेक तकसीम किए। कराची से खैबर तक का सफरनामा अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बाखबर रहने के लिए वक्त न्यूज़ के साथ रहिए।